Hello friends, this is Dikshit sir with a new video on exponents. This is for standard 7. Okay, so let's begin with how large. The title which I have written is how large numbers are written in shorter form. Okay, there is a way to write a number in shorter form. Before that, you need to observe and understand this fundamental of raised to power. See, this is 100. Okay, so 100, it can be written as 10 multiplied by 10. Okay, so this is 10 into 10, that is equal to 10 raised to power 2. Friends, can you remember? See, there is nothing written at the top of this, so it is assumed to be 1. Correct? It's nothing written over here, it is assumed to be 1. Now can you remember the formula? A raised to m into a raised to n. So a raised to, that is base is same, so a raised to m plus n, so 1 plus 1 it becomes 2. Clear? Okay, so that means what? 100 can be written as 10 square, okay, or 10 raised to power 2. The next is 1000, it is written as 10 into 10 into 10, or that can be written as 10 to the power 3. 10,000 can be written as 10 to the power 4. So in this way you can write a number in shorter form. Okay, next is now it's not 10, something different. See, a number 5863. Okay, its number is 5863. Its expanded form. Now expanded form, you will be surprised, सर हमने ये expanded form तो सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड में ही पढ़ा है. हाँ, लेकिन ये एक्सपांडेड फॉर्म जो है ये आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. ओके, सो 5863, फर्स्ट राइट what you know, that is 5000 plus 800, okay, plus 60 plus 3. Fine. Now 5000 can be expressed as 5 multiplied by 1000. Now why this bracket? Because 5000, this complete bracket means 5000, so it is 5000 plus, that is 5 into 1000, plus second bracket 8 into 100 because I want the number as 800, plus 6 into 10 because I want 60, and plus 3. Correct? So the next step is equal to 5 multiplied by, a few minutes back we learned here that 1000 can be written as 10 raised to power 3. So I will write here as 5 multiplied by 10 raised to power 3 plus 8 multiplied by 10 to the power 2 and plus 6 multiplied by 10 to the power 1 and plus 3. Fine. So next, now it's very easy, so I have given you some homework. Friends, now the homework, every video I'll be giving you some homework. Those who want to be good at maths, kindly do this homework and send it to me, your images, the photos, on my WhatsApp number. The first question is, you have to expand it in exponential form. Okay, so this is 48,233. Next, second is, and friends, what you do is, see, when you watch this video, keep a notebook in front of you, a rough notebook, and just copy this homework when we are talking or when you are watching the video, and then close the video, your mobile, and then complete your homework. That is the correct way. Okay, so first number is 48,233. The second is 2,53,497. The third number is 50,003. Okay, you have to write it in expanded form, in exponential expanded form. The next number is, see how many like units, tens, hundreds, thousand, 10,000, lakh, 10 lakh, 1 crore. So this is 6 crores 30 lakhs 30,208. Fine, you have to expand it and write it in exponential form. Okay, fine. Now next part, let's begin with find the value of minus 2 raised to power 3. Can you see this? Minus 2 raised to power 3 plus 3 raised to power 2. Okay, now see, minus 2, solution for this is
-2 raised to power 3 plus 3 raised to power 2, okay, is equal to now -2 cube. So what you know is -2 cube means -2 into -2 into -2, and always make a habit of putting this bracket, plus 3 square means 3 into 3. Now friends, before giving you any type of rule, just try to understand this. Assume that I don't know and you also don't know any type of rule. Simply multiply. See, you know this basic rule, not of indices, what you were taught in standard 5 and 6. -2 into -2, that is 2 2s are 4, and minus into minus, that is plus. So multiplication of these two terms, you will get +4. Now +4 into -2, that is 4 2s are 8, and plus into minus, the answer you will get as -8. So -2 into -2 into -2, you got answer as -8. Okay, then 3 into 3 is +9. Then this is not multiplication, okay, so this is plus minus, so you have to subtract 9 minus 8, that is 1, and the sign of bigger number, so I'll put sign as +1 will be your final answer. Friends, the problem which we solved, okay, in that, now here comes your rule. Consider -a raised to power n. Okay, if n is odd, then -a raised to power n is equal to, put minus sign and a raised to n. And if the power n is a even number, then -a raised to power n, the answer will be positive. I'll make use of a slate to make this idea more clear. So just focus on what I am talking about. See, even if you don't learn the rule, it's very easy, you will remember this. See, -1 raised to power 4. Now can you see, the power is even number, that is 4. So if it's even number, forget about the sign, your answer has to be positive because it's an even number. Now just 1, forget this negative sign. 1 raised to 4 is how much? It is 1. So answer will be just +1. Fine, one more. -2 raised to power 4. Now -2 raised to power 4. Students, concentrate over here. -2 raised to power 4. What I taught you, if the power is even, so this power is even, correct? So answer has to be positive. Don't look at the sign. So just calculate 2 raised to power 4. सर हमको समझ में नहीं आ रहा है. 2 raised to power 4. It's very simple. 2 raised to power 4 means 2 into 2 into 2 4 times. What students commit a mistake is they just say 4 into 2, that is 8. It's not that way. It is 2 into 2 into 2. It's multiplication. Okay. Forget this minus sign, your answer will be positive because the power is even, and 2 into 2 into 2 4 times, so it will be like the answer is 16. Hope you got this. Okay, one more. Now let us continue with some negative power, odd power, that is -2 raised to power 3. Friends, what you have to do is, see, check with the power. Power is an odd number. Okay, so if it's odd, then answer has to be negative. So just without working, without thinking anything, power is odd, put a negative sign, and then forget this sign and just calculate 2 cube, that is 2 into 2 into 2. So I know 2 into 2 into 2, that is cube of 2, the answer is 8. Hope you are getting this. Fine, one more, that is -3 raised to power 2. Now friends, -3, okay, this is, power is what? Power is even number, so your answer will be positive. And 3 square is what? 3 square is, Shubhra, what is 3 square? 9. Okay, so I'll write here 9. Fine, so the answer is +9. Hope you are getting this. Okay, let's continue further. The next case is, chalo, bacha party, let's continue further. Express the following numbers as product of powers of prime factor. हे भगवान, लाइन तो बहुत ही भयंकर डिफिकल्ट लग रही है. इट्स वेरी सिंपल.
आपने 5th 4th स्टैंडर्ड में फैक्टर्स सॉल्व किया था, फैक्टर्स कोई नंबर के फाइंड आउट करते थे। आपको यहाँ क्या करना है, एक नंबर आपको दिया रहेगा, से फॉर एग्जांपल 432, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसको ब्रेक करते जाना है। से 432, होप मुझे ये पढ़ाना नहीं पड़ेगा, 7th स्टैंडर्ड में हम लोग हैं, तो 432 को यहाँ पर इवन नंबर है यूनिट्स प्लेस पे, सो ये 2 से डिवाइड होगा, तो इसीलिए 2 मल्टीप्लाइड बाय, इसको आप 2 से जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, तो आंसर आएगा 216। गार्गी बरोबर है, हाँ। सो दिस इज 216, 2 इंटू 216, सो दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय, नाउ फ्रेंड्स जस्ट फोकस हियर, 2 इंटू 216। अब अगले स्टेप में क्या करना है, ये 2 यहाँ पर जैसे के वैसा लिख दो, अब जाके ये 216 को फिर से 2 से डिवाइड करो, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 108। यहाँ पे अभी किसी ने तो भी गलती किया था, ये 2 लिखना भूल गए। देखो ये 2 जैसे के वैसा लिखा, हाँ गार्गी ध्यान दो यहाँ पर, मृदुला 2 जैसे के वैसा यहाँ लिख दिया, ये 216 को ब्रेक करके ये आंसर आया है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 108, बरोबर। ओके, नाउ वन मोर स्टेप, दैट इज़ ये 2 जैसे के वैसा लिखो, ये भी लिखो, और 108 जो है उसको ब्रेक करना है, तो 2 इंटू 54 आएगा, करेक्ट। द next step is 2 as it is, this 2 as it is, 3 times this 2 as it is, then 54 को ब्रेक करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय ये आएगा 27, करेक्ट। यू आर गेटिंग दिस, ओके। द नेक्स्ट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, fine. So this is 4 times 2 as it is, and 27 is a odd number which cannot be divided by 2, so I'll divide it by 3 and write here 3 into 9. नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप इज़, ये 2 जितना आपने लिखा है वो जैसे के वैसे यहाँ कॉपी करो, और ये जो 3 है ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय, ये 9 को कैसे लिखोगे, तो 3 इंटू 3। आपको क्या करना है, देखिए कितने बार 2 का मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सो इट इज़ 4 टाइम्स, सो आई विल राइट हियर बेस 2 एंड रेस टू पावर 4, करेक्ट, एंड मल्टीप्लाइड बाय 3 कितने बार है मल्टीप्लिकेशन, सो 3 टाइम्स 3 दैट इज़ 3 रेस टू पावर 3, और ये जो है तो इसको हम बोलेंगे दैट 432। I have done is I have found out the prime factors, the powers of prime factors, बरोबर। So this is how it goes, and this is the required form which they had asked. This I'll read the question again. Express the following numbers as product of powers of prime factor. देखिए 2 और 3 ये प्राइम फैक्टर है और ये उसके पावर्स है, तो 432 को आपको पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर में लिखना है। चलो वन मोर, ये बहुत इजी दे रहा हूँ, ये आप ट्राई कीजिए, और हो सके तो मैं पढ़ाने से पहले ही आपका हो जाना चाहिए। चलो फास्ट, मेक इट फास्ट। सक्षम, हैव यू स्टार्टेड? 1000 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 500, ओके। जिया, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? येस, 2 मल्टीप्लाइड बाय 500। समर्था, आपने कैसे लिखा ये अभी? 1000 को 2 इंटू 500 लिखा, फिर 2 जैसे के वैसा लिखा, बाद में 500 जो था तो इसको ब्रेक किया और लिखा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाय 250। होप यू आर गेटिंग। सी अगेन, 1000 इज 2 इंटू 500, 2 एज इट इज़, 500 कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू 250। अब अगले लाइन में क्या लिखोगे? यहाँ पर एक गलती होने का चांस है कि बहुत लोग क्या होता है ये 2 एक आधा लिखना भूल जाते हैं, एंड दैट will be like your answer will vary। 2 इंटू 2, ये 2 2 जैसे के वैसे, ये 250 को मैंने ब्रेक किया तो वो आएगा 2 इंटू 125। नेक्स्ट स्टेप, 2 इंटू 2 इंटू 2 एज इट इज़, 125 विल बी रिटर्न एज 5 मल्टीप्लाइड बाय 25। आपको उसको छोटा बनाते जाना है, दैट्स इट, ब्रेक करते चलो। ये 2 2 2 3 बार जैसे के वैसा लिखा, फिर ये 5 लिखा, अब ये 25 को हमने लिखा 5 इंटू 5, correct। So this is 2 into 2 into 2 multiplied by 5 into 5 into 5, fine। So this is equal to 2 raised to power 3 multiplied by 5 raised to power 3। How, why so? That is 2 are multiplied, 2 is multiplied 3 times, so 2 cube into 5 cube. This is how 1000 can be written. There is one more method,
हाँ, देर आर वेरियस वेज. वन मोर वे इज 1000 को आप कैसे लिख सकते हैं, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10. 10 को आप ब्रेक करो, ये जल्दी हो जाएगा. दैट इज़ 2 इंटू 5. यहाँ पे बीच में गलती से प्लस साइन मत लिखना, ये सब मल्टीप्लिकेशन में है. तो 2 इंटू 5 multiplied by 2 into 5 multiplied by 2 into 5. So it will be 2 into 2 into 2, that is 2 cube, multiplied by 5 into 5 into 5, that is 5 cube. तो ऐसा भी करो तो भी आंसर आ सकता है, आप डिसाइड करो. You find your own ways to solve, provided the answer should be correct. That's it. चलो, let's try one more problem. Anuja, can you try this? This is 12,000. You have to break it into prime factors. You have to find the prime factors. Okay, so 12,000 can be written as 12 multiplied by 1,000. अब हम थोड़ा सा शॉर्टकट करेंगे. 12 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4, बराबर, और 1000. नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 3 जैसे कि वैसा लिखा. ये 4 को आप कैसे लिखोगे, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1000. नेक्स्ट स्टेप इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्यूब. देखिए हमने क्या किया, आप ध्यान से, ये ऊपर 3 था, ये स्टेप से फिर से एक बार देखते हैं. दिस इज़ 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1000. ओके, नाउ दिस 2 इंटू 2, इसको सिर्फ उठा के मैंने पहले लिखा है, बाकी कुछ नहीं. छोटे नंबर से असेंडिंग ऑर्डर में मैं अरेंज कर रहा हूँ. देयरफॉर आई हैव रिटन दिस 2 इंटू 2 इन द बिगिनिंग, देन दिस 3 एज इट इज़, यहाँ कोई चेंज नहीं किया है. मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर देखिए अभी 1000 को कुछ देर पहले ही हमने पढ़ाई किया कि 1000 को आप ऐसा लिख सकते हैं, तो मैंने डायरेक्ट लिखा है, बराबर. तो आपको एग्ज़ाम में ये आपको वहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा. कुछ मिनट पहले ही मैंने ये किया था, इसीलिए मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ. 1000 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब. अनन्या, समझ में आ रहा है आपको? वेरी नाइस. चलो लेट्स मूव अहेड. सो दिस इज़ 2 इंटू 2 एज इट इज़. ये 2 क्यूब जो है उसको इधर लेते हैं ताकि सभी 2 एक साइड में आ जाएंगे. मल्टीप्लाइड बाय दिस 3, और उसके सर के ऊपर कुछ नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 3⁻1 मल्टीप्लाइड बाय ये 5 क्यूब एज इट इज़. सो दिस इज़ 5 क्यूब. ओके, नेक्स्ट स्टेप इज़ 12,000 इज इक्वल टू, नाउ फ्रेंड्स ये इजी है, देखो 2⁻1 इंटू 2⁻1 इंटू 2⁻3. तो ये हो जाएगा 3 + 1 4 + 1 5, दैट इज़ 2⁻5. आर यू वेटिंग दिस? और 3 के ऊपर 1 और कोई 3 नहीं है, तो वो जैसे के वैसा, और ये 5 जो है उसके ऊपर का 3. सो दिस इज़ 5 क्यूब. दिस इज़ हाउ यू गॉट एन आंसर. अगला प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा सा अलग से, देखिए मैंने नंबर यहाँ पर आपको दिया है -400. सो -400 को आप कैसे लिख सकते हैं? सो इट इज़ -1, बराबर, इंटू 400. हमेशा कोई माइनस नंबर आया तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं. -1⁻1. अगर इन केस यहाँ पे 400 के ऊपर 2 रहता था तो इधर भी 2 आ जाएगा. तो -1⁻1 इंटू 400. होप आपको समझ में आ रहा है. -1⁻1 अभी अभी पढ़ाया था, जब कोई माइनस नंबर के ऊपर ऑड नंबर होता है तो आंसर माइनस आएगा, तो इसका आंसर -1 आने वाला है. अब ये निगेटिव साइन को भूल जाइए, इसीलिए ये ब्रेक किया हमने. अब सिर्फ 400 के ऊपर फैक्टर्स सॉल्व करने का काम कीजिए. दैट इज़ 2 इंटू 200. नेक्स्ट स्टेप इट इज़ 2 एज इट इज़ एंड 2 इंटू 100. नेक्स्ट स्टेप 2 इंटू 2, और 100 को हम लिखेंगे 2 इंटू 50. ओके, नेक्स्ट स्टेप इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 25. ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज़ -1 जैसे कि वैसा, ये 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये पेन से आप एक्चुअली बुक में सॉल्व कीजिए. ये ऐसे सिर्फ समझ में नहीं आएगा कि 2 इंटू 2 कितने बार लिख रहे हैं. इट्स सिंपल एक्चुअली. जो ऊपर 2s रहते हैं उसको कॉपी करना रहता है और ये नंबर को ब्रेक करना है. यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 टाइम्स 2 है, तो ये 4 टाइम्स 2 हो गया, और 25 को हमने लिखा 5 इंटू 5. फाइन. सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ -1 जैसे कि वैसा इंटू 2⁻4 इंटू 5⁻2, और ये हो गया उसका factors of -400. This is your final answer. Hope you are getting this. Okay, now 2 problems for you. Evaluate. इसका आपको सिर्फ आंसर निकालना है. क्या करना है? पावर इवन है कि ऑड है
और वो साइन दे दीजिए और बाद में 5⁴ यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ऐसे 4 बार, तो ऐसा इसका आंसर आपको निकालना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम फॉर योर होमवर्क इज़ -2⁻³ मल्टीप्लाइड बाय -10⁻3। यहाँ थोड़ा सा क्रिटिकल रहेगा, मैं एक हिंट देता हूँ आपको। -10⁻³ है। एक काम करते हैं, मैं ये आपको अभी स्लेट पर बताता हूँ। ये -10, इसको आप क्या करने वाले हो, सिर्फ उतना बता रहा हूँ, पूरा सॉल्यूशन नहीं। -10, शुभ्रा समझ में आ रहा है? Yes. -10⁻3, so this can be written as now -10. फाइन, व्हाट आई टॉट यू इज दिस इज ऑड पावर, सो माइनस साइन यहाँ पर डाल दीजिए और बाद में सिंपली 10⁻3, ये माइनस साइन को आप भूल जाना है। तो 10⁻3 इसका आंसर एक तो आप निकाल सकते हो, बरोबर, दैट इज 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है ना, दैट इज़ 1000। तो इसका आंसर स्ट्रेट वे आप -1000 ऐसे लिखा तो भी चलेगा, करेक्ट। और बाकी ये दूसरा -2 का आंसर निकालिए और ये दोनों को बाद में मल्टीप्लाई करना है। आप मुझे सॉल्व करने के बाद में उसके फ़ोटो भेजिए, यू कैन सेंड इट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, आई विल चेक इट, ओके, एंड लेट यू नो वेदर यू हैव डन इट करेक्टली और नॉट। चलो लेट्स कंटिन्यू फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई, वेरी सिंपल, 6⁻² इंटू 6⁻4 अपॉन 6⁻3। फ्रेंड्स ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, आप ये अपने मन से सॉल्व कीजिए। आंसर 6³ ये कैसे आया वो भी यहाँ दिया है, यू ट्राई इट एट योर होम विदाउट लुकिंग एट दिस सॉल्यूशन। अगर नहीं आता है तो आप ये वीडियो ओपन कीजिए और सॉल्यूशन आपके सामने रहेगा। लेट अस मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये थोड़ा सा अलग है, ये हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। दिस इज़ 2², ध्यान से देखिए, 2² ब्रैकेट और उसका क्यूब है, बरोबर। नेक्स्ट इज मल्टीप्लाइड बाय 3⁻6 है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट है और मल्टीप्लाइड बाय 5⁻6 है। आप आराम से पहले प्रॉब्लम को कॉपी कर लेना, फिर बुक में पहले वीडियो देखिए और बुक में बाद में ट्राई कीजिए, ठीक है। देखते हैं मैं सॉल्यूशन, देखिए यहाँ कैसे करना है आपको। ये 2⁻2 ब्रैकेट ⁻3। फ्रेंड्स यहाँ पर ऑरेंज इंक में आपको कुछ रूल दिख रहा है, लॉज ऑफ इंडाइसेस, a⁻m ब्रैकेट ⁻n, बरोबर। सो यहाँ पर a⁻m इंटू n, तो इधर क्या हो जाएगा 2⁻2 ब्रैकेट ⁻3, सो इट विल बी 2⁻2 इंटू 3, फाइन। सो दैट इज़ 2⁻6 अगले स्टेप में आएगा, मल्टीप्लाइड बाय ये जो 3⁻6 था वो जैसे के वैसा लिखा है, और ये बाहर वाला 5⁻6 भी जैसे के वैसा लिखा है। यहाँ देखिए अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2⁻6 इंटू 3⁻6 स्क्वायर ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय बाहर है 5⁻6। अभी थोड़ा सा ध्यान इधर फ्रेंड्स, देखिए ये अगर इस तरह से है, ये फॉर्मूला हमने लिखे हुआ है, हाँ, अगर ये अब इसको उल्टा अप्लाई करना है, कैसे देखिए, a⁻m मल्टीप्लिकेशन का साइन है और दूसरा कोई नंबर है और raised⁻m, दोनों की पावर सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो हम उसको दोनों नंबर्स को ब्रैकेट में लिख के एक ही बार उसका पावर लिख सकते हैं। दैट इज़ ये देखिए यहाँ पे 2 यानी a है, हाँ, 2⁻6 और 3⁻6, दोनों नंबर अलग है लेकिन पावर सेम है, तो ये कैसे हो जाएगा 2 इंटू 3 ब्रैकेट ⁻6, करेक्ट, मल्टीप्लाइड बाय 5⁻6 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप इज़, देखिए 2 इंटू 3, अब ऐसा एज्यूम करो कि ये पूरा ब्रैकेट म्हणजे एक ही कोई नंबर है। अब आपको मैं ये उंगली से ढक दिया है, अब आपको क्या दिख रहा है, एक ब्रैकेट में कोई नंबर है, ठीक है, ⁻6, बरोबर, एंड मल्टीप्लाइड बाय 5⁻6, करेक्ट। सो अगेन द सेम थियरी, दैट इज़ ये नंबर के ऊपर का पावर और इसके ऊपर पावर सेम है, तो आप ऐसा कर सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5⁻6, करेक्ट। कुछ लोगों ने, अभी मैंने देखा मेरे क्लास में कुछ लोगों ने ऐसे किया, देखिए 2 इंटू 3⁻6 है, तो इसको कुछ लोग ऐसे कर रहे थे 6⁻6 मल्टीप्लाइड बाय 5⁻6, ऐसे उन्होंने सॉल्व किया तो भी चलेगा। आपका इसके बाद की स्टेप क्या हो जाएंगी, फिर 6 इंटू 5⁻6 और उसके बाद की स्टेप हो जाएगी 30⁻6, यहाँ पर भी वही है, इधर भी वही है, आपको समझ में आ रहा है। सो दिस इज़ हाउ आप इंडाइसेस में अगर रूल्स अगर आप करेक्ट अप्लाई कर रहे हो तो मेथड इधर उधर हो गया तो भी चलेगा, आंसर सेम आएगा। वन मोर सिंपल प्रॉब्लम फॉर यू, 2³ इंटू a³
मल्टीप्लाइड बाय 5 a रेस टू पावर 4। फाइन, दिखने के लिए ऐसा दिखता है। अब किस तरह से करेंगे देखिए, बीच में सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन साइन दिख रही है आपको हर जगह। हाँ, तो देखिए इसको 2 रेस टू 3 इंटू a रेस टू 8 इंटू यहाँ देखो 5 रेस टू कुछ नहीं है म्हणजे 1 मल्टीप्लाइड बाय 5a के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन a रेस टू 4। अब ये सिंपल दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, 2 रेस टू 3 और कोई 2 बेस वाला कोई है क्या इधर टर्म नहीं है, तो ये 2 रेस टू 3 जैसे कि वैसा। ये 5 रेस टू 1 नंबर को एक साइड में लिया तो यहाँ लिखा 5 रेस टू 1। ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज आई एम राइटिंग हियर दैट इज a क्यूब। फाइन, सो दिस इज a क्यूब एंड a रेस टू 4। द नेक्स्ट स्टेप विल बी 2 क्यूब का वैल्यू कितना होता है, 2 cube the value is the value of 2 cube is 8 multiplied by 5 multiplied by a raised to power, ये आ जाएगा a cube into a raised to 4 and a raised to 7 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आएगा हमारा 8 5 40, सो 40 a raised to 7। फ्रेंड्स, these are the problems for your homework, a lot of homework today, लेकिन इसको आप अच्छे से सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर लिखा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको आपको सॉल्व करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है 25 रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 5 रेस टू 4। तो 25 को 5 इंटू 5 लिखिए या 5 स्क्वायर लिखिए, फार्मूला अप्लाई कीजिए। और नहीं आता है, देखिए फ्रेंड्स आपको ये आता है नोटबुक में सॉल्व कीजिए, मुझे फ़ोटो भेजिए। आपको नहीं भी आता है तो जस्ट सेंड मी अ मैसेज कि ये वाला प्रॉब्लम सर हमको नहीं समझा है, प्लीज़ इसको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करना, तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू। बट आप वैसे ही बैठे रहोगे तो कुछ नहीं बनेगी बात। आपको आइदर आना चाहिए और नहीं आता है तो मुझे पूछो। नेक्स्ट होमवर्क इज़ 3 multiplied by 7 square into 11 raised to 8 divided by 21 into 11 cube. Next homework is 4 raised to 5 into a raised to 8 into b raised to 3 divided by 4 raised to 5 into a b ब्रैकेट में लिखा है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है बीच में, रेस टू पावर 3। अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। बरोबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स याद है, इसको आपको ब्रेक करते जाना है। यहाँ पर एक छोटा सा अलग प्रॉब्लम है, चेंज किया है 108 इंटू 192। यहाँ आप क्या करोगे, इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो और दोनों फिर कंबाइन करो, ठीक है। उसके बाद है नंबर 270, नेक्स्ट नंबर इज 768। आपको क्या करना है, यू हैव टू एक्सप्रेस दीज 3 नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। फाइन फ्रेंड्स, इसको कंप्लीट करना और जो प्रॉब्लम नहीं आएगा मुझे पूछिए, और होने के बाद मुझे इस नंबर पे 9422193395 ये नंबर पे फ़ोटो स्नैप निकाल के मुझे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। विल स्टॉप हियर एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।